Good evening. Just put in chat box whether I'm audible. चैट बॉक्स में पहले लिखिए आवाज आ रही है कि ठीक. Okay. I'll go and present my screen. Good. Good evening, all of you. This is our 25th lecture. We are going to have 50 to 55 sessions, which were supposed to be of half an hour to 35 minutes. But normally, if we are going through our lecture videos, most of them are about 1 hour or plus. So, expected period of course was 25 hours, but we will be covering approximately 50 to 55 hours or so. Now, as we are about to be at midpoint of our course, I would like to summarize because we have finished sessions for the 5th standard to 10th standard in astronomy, and then we covered a lot of things. So, as major academic portion is completed for all of you, those who are astronomy enthusiasts as well as those who are the current student of respective standards of Maharashtra State Government. So now we will be going in little summary part. Lecture 1 we covered about scientists, social reformers, what to know. Then little bit of origin of universe we started. Lecture 2 we talked about bit about the few constellation, then pole star. Lecture 3 also we covered. This is I'm talking about the basic astronomy 5 sessions which we covered. And that is why when we say we are going to cover 50 sessions, I always add up that 5 sessions which comes out to be 55 sessions. So third lecture was again few constellation. Fourth lecture was on origin of universe timeline. Fifth lecture was on binocular telescope selection and bit on the vastness of universe. Sixth lecture on general astronomy and one important constellation called Andromeda. Little bit on the solar system distancing. Lecture 7 we cover about the Greek alphabets, meteor showers, and then prevailing meteor shower at that particular period was Leonids. So we talked about Leonids. Then lecture 8 was about some new terms and RA declination. Then we went into some Messier objects of Pisces Austrinus constellation. Then lecture 9 was Pegasus constellation. Lecture 10 was Lacerta, Pegasus, and few facts about Sun. Lecture 11 was what about Grus, Ticuna constellation, and then few facts about Sun. Why I'm covering this? Because today lecture 25 will have no special constellation coverage or any academic syllabus. Today we will be covering summary or revision part of your past sessions, and don't leave class. We have very important session after covering this revision, and that important part is so important that it will be reflected in your certificate, which will be issued at the end of course. So now let's get into what we have covered. Okay, this is all we have covered. We were seeing this since long time, and first 11 lectures I have already told you what we have covered. Now leftover constellation I'll just touch upon. We have covered Aquarius, Pegasus, we have covered Cepheus, Ursa Minor, Camelopardalis, Cassiopeia, Andromeda, Pisces, Cluster, Phoenix, Aries, Triangulum, Perseus, and we were expecting to cover Cetus constellation. But anyhow, since last 2 sessions, we are not able to cover it. Certain constellations we have skipped. As we are from the northern hemisphere of the Earth, we are not able to see actually because of the cloudy conditions or little bad visibility on the horizon. And this obviously southernmost points of the pole, South Pole, we are not able to see in sky. So what we have skipped is Formax, Horlogium, Hydrus, Reticulum, Coelum, Octans, Mensa, Dorado, Pictor, Holans,
chameleon, musca, and apus. Few more we will be skipping, but skipping means keeping or postponing it to the end of session. This 13 plus another 5, 6, so around 20 constellations which are not prominently visible for the northern hemisphere people like Indians, it will be covered at the end of session like a theoretical part. So what practical part we are going to cover for the remaining constellation is that I am expecting every one of you, आप सबसे मेरा expectation है कि आप डेली बेसिस पे जब क्लास होती है हफ्ते में एक बार, तो रात को हफ्ते में जो पढ़ाया वो स्काई में ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। कितने लोग करते हैं मुझे नहीं पता। जो सेटस कॉन्स्टिलेशन कुछ दिनों पहले आसमान में ऊपर था, आज एक 10 दिन पहले का ये कंडीशन है, 10 दिन पहले या ये 7 तारीख का, मतलब 8 दिन पहले का ये कंडीशन है। शाम को 7:30 बजे वो ऑलमोस्ट वेस्टर्न होराइजन पे था। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं इसको कवर करते करते हम ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे थैंक यू नहीं हुआ। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आज हम कुछ स्पेशल पढ़ने वाले हैं, उस स्पेशल की तरफ हम अभी चलेंगे। और वो स्पेशल पार्ट क्या है, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन भी आपको देने पड़ेंगे। तो लेट्स गेट इनटू दैट पार्ट। आई नो दैट वी आर जस्ट फिनिश सम इनिशियल 3-4 minutes, 5 minutes, and then we are here, okay, where we are covering or we are talking about some special part which will be covering for the another at least 40 minutes, because 45 minutes is the time period. Now let's come to the instruction part. Who's present? I will see from the astronomy course batch. Dr. Pikle sir is there. Then we have Avirat Chavanji. Then we have Purva, Shlok Kulkarni. There's many people only. Okay, Sushma Patil. Okay, very good. It's Arush is there. So very good. Now what we are going to have special today. डॉक्टर पिकड़े जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो ऑन करने के कंडीशन में है तो आज के स्पेशल सेशन की शुरुआत आपसे होगी। हमने ऑलरेडी 25 सेशन कवर किए हैं। आज आपकी एग्जाम। ओके, सॉरी, इट इज शॉक, आई नो। सरप्राइज टेस्ट को सरप्राइज ही मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आप वीडियो ऑन करना चाहते तो कर सकते हैं, इट इज अप टू यू, ऑप्शनल। मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपको जवाब देने हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो पार्ट। हम स्टॉप शेयरिंग कर देता हूं मैं, और मुझे सर दिख सकते हैं क्या? उन्होंने अगर वीडियो ऑन किया है तो मुझे नहीं दिख रहे सर। अच्छा, ओके ओके सर, ठीक है, दैट्स फाइन सर। आपका वीडियो का कुछ इशू है तो भी प्रॉब्लम नहीं, आपकी मुझे आवाज आनी चाहिए। यस सर, ये दैट्स फाइन सर। आप सिर्फ आवाज आपकी मेरे पास आनी चाहिए। आपको मैं पहले क्वेश्चन पैटर्न समझा देता हूँ। ओके, जितने स्टूडेंट प्रेजेंट है कोई भी ना चैट बॉक्स में आंसर लिखेगा ना माइक ऑन करके जवाब देगा। जो भी जवाब देगा गलती से चैट बॉक्स में या माइक ऑन करके, उसको क्लास से निकाला जाएगा इमीडिएट बेसिस पे, और एडमिशन भी नहीं दिया जाएगा एटलीस्ट इन दिस क्लास। सो एग्जाम में होंगे 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सर, और 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक एक मार्क मिलेगा आपको अगर आपको ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस चाहिए। अगर मैंने सवाल पूछा और बगैर ऑब्जेक्टिव क्या ऑप्शन है पूछे बगैर आपने जवाब दिया तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेगा। तो डायरेक्ट जवाब देने के लिए 3 मार्क्स। अगर आपको मल्टीपल चॉइस की जरूरत पड़ी तो मुझे 4 ऑप्शन आपको देने पड़े तो इमीडिएटली उसका लेवल घट के हो गया 1 मार्क, और आपने सही जवाब दिया तो 1 मार्क, और गलत जवाब दिया तो आपका मार्क्स कट नहीं होगा। ओके, ये हम पहले सिस्टम में हम नेगेटिव मार्किंग नहीं करते। सो इफ यू आर रेडी वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। शैल वी स्टार्ट? आप माइक ऑन रखिए। यस, ओके, so the first question, objective type question, is planet in a solar system which can float on a water। आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ऑप्शन चाहिए। यस सर। तो आपका पहला ऑप्शन है मर्क्यूरी, दूसरा ऑप्शन है मार्स,
तीसरा ऑप्शन है प्लूटो, चौथा ऑप्शन है सैटर्न। Not sure. Pluto. ओके सर, आपका जवाब गलत जवाब। ओके, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको इधर 0 मार्क मिले। और Yes. एक मैं सारे ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, सेशन इंटरेस्टिंग होने के लिए बीच बीच में एग्जाम लेने चाहिए, बट मैं बहुत बिजी रहता हूँ तो ये सब नहीं कर पाता हूँ। सबसे एल्डरली स्टूडेंट अपने क्लास में डॉक्टर पिकड़े सर है, और फिर भी वो जिस सिंसियर और सिस्टमेटिकनेस से जवाब दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो कोई भी इसको निगेटिवली मत लीजिए, आंसर प्लीज बुरा फील मत कीजिए। तो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बीच में एक्सप्लेनेशन भी देते जाऊंगा। सैटर्न बहुत बड़ा प्लेनेट है और उसमें 700 अर्थ रह सकती है, इतना बड़ा प्लेनेट है। बट एवरेज डेंसिटी अगर हम उसकी निकालें तो वो 0.7 के आसपास आती है, और पानी की डेंसिटी लगभग 1 है। ग्राम्स पर सीसी में बात कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर अगर हम सपोज बहुत सारा पानी इकट्ठा किया, इतना बड़ा कि उसमें सैटर्न को हम रख सके, तो उसमें ऑब्वियसली एक आइसक्रीम क्यूब की तरह सैटर्न जो है वो फ्लोट करे। तो ये था जवाब। अभी आगे से मैं शायद एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 2। सर ये थोड़ा टफ सवाल है क्योंकि आप थोड़े एल्डरली है। सवाल ये है, जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई स्मूथली इन अ लोअर स्ट्रेटोस्फियर, व्हाट इज द रीजन? सर आपको ऑप्शन चाहिए? Yes. ओके सर, तो आपके लिए ऑप्शंस है कि लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में क्लाउड्स और वाटर वेपर्स नहीं होते, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में वर्टिकल विंड नहीं होता है। अभी आपको बताना है, ऑप्शंस ये है आपके लिए कि जो दो जवाब मैंने दिए वो दोनों सही है, दोनों गलत है, ए सही है या बी सही है। फिर से आपके लिए सवाल पढ़ता हूं ताकि आपको सुनने में समझने में आसानी हो। जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई स्मूथली इन अ लोअर स्ट्रेटोस्फीयर बिकॉज नो क्लाउड्स और वाटर वेपर एग्जिस्ट देयर और नो वर्टिकल winds exist there. What is the correct option? Or both the options are correct or both the options are wrong? A is correct. A is correct. Is half the answer because no vertical wind exists is also correct answer. तो यहाँ आपको 1 मिलना चाहिए था मार्क्स, बट मिल रहा है हाफ। नाउ वी गो टू द, इट्स ओके सर, प्लीज ये थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से लीजिए, आप बोर मत हो जाइए। आप तुम्हारा No, no, कंप्लीट है ना ये? very interesting. या थैंक यू सर। So third question for you is, how many Earths can be accommodated in Sun? Options. Very good. 1 लाख, 1 मिलियन, 25 लाख, 50,000। Just a guess, 1 lakh. 1 लाख is a incorrect answer because 10 लाख is a right answer, जो मैं बोला नहीं, बट 10 लाख मतलब 1 मिलियन होता है सर। ओके, तो यहाँ आप गलत हैं, तो आपको मिलता है 0। ओके, तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये थोड़ा आपको तकलीफ देगा, फिर भी पूछना पड़ेगा। द क्वेश्चन 4 इज, नेपच्यून वाज डिस्कवर्ड बाय व्हिच साइंटिस्ट? डू यू नीड ऑप्शन? Yes. ओके, योर ऑप्शन इज ए गैले, बी गैलीलियो, सी केपलर, डी न्यूटन। Kepler. Kepler was incorrect answer because the right answer is Galileo. So here also you score 0. Your next question is, nearest star to sun is? जवाब देना है आपको या आपको ऑप्शन चाहिए? Mercury. सर आपने सवाल सुना नहीं, नियरेस्ट स्टार टू सन। Okay, sorry. हाँ, Nearest star to sun is Proxima Centauri. वेरी गुड। तो सर आपने तो यहाँ एकदम छक्का मार दिया, क्योंकि आपने ऑप्शन पूछे बगैर जवाब दिया, तो इधर आपको सीधे मार्क मिले 3। ओके, तो दिस इज गुड जवाब सर, प्रॉक्सिमा सेंटाuri।
ऑप्शंस थे आपके पास अल्फा सेंटारी, बीटा सेंटारी, बर्नार्ड स्टार एंड प्रोक्सिमा सेंटारी। अभी आपके पास लास्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव टाइप है, जिसमें आपको जवाब देना है डिस्क्रिप्टिव तरीके से और आपको एक्सप्लेन करना है अर्सा माइनर कॉन्स्टिलेशन जो हमने कवर किया। आपको 5 सेंटेंस के ऊपर जो भी आप देंगे उसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे इफ इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। तो 5 सेंटेंस अप्रोक्सीमेटली 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। यू कैन स्टार्ट। No, I do not have much information about this, sir. Sorry. अर्सा माइनर जिसमें पोल स्टार है, इसके ऊपर हमने 2 बार लेक्चर में कवर अप किया। तो सर आपको कुछ भी याद आ रहा है आप ट्राई कर सकते हो, डू नॉट टेक इट नेगेटिवली। आई स्टार्टेड फ्रॉम यू बिकॉज आई नो यू आर वेरी पॉजिटिव पर्सन। Yes. सो एनीथिंग यू रिमेंबर? No, sir. I don't remember. Sorry. तो अभी मैं आपको लेक्चर पिलाता हूँ। ओके सर, Yes. आप एल्डरली पर्सन है, आपने खुद से इंटरेस्ट लेके क्लास ज्वाइन की है और आपको मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज भी दिए हैं कि भाई ये किताबें खरीद लीजिए, ऊपर से हमारा क्लास भी अच्छा होता है, ऐसा आपका हमेशा रिमार्क रहता है। एंड लेक्चर वीडियोस भी स्टोर करके यूट्यूब पे है। और फिर भी आप लोग अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो एल्डरली लोगों से छोटे बच्चे कुछ ज्यादा लेसन नहीं लेंगे। तो आपको आज से इंटरवल के बाद पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। दो आई नो यू हैव वेरी बिजी शेड्यूल बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एंड योर प्रोफेशन। सो वी विल स्टॉप क्वेश्चन आंसर सेशन फॉर यू और आपका मार्क्स बिट्स जो है वो क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक सवाल के जवाब में 5 मार्क्स मिल सकते थे जो आपने यहाँ बिल्कुल ट्राई नहीं किया, सो वी हैव टू गिव यू 0। तो आप ओके सर, नाउ यू कैन स्विच ऑफ योर माइक। और आप सर चाहे तो ये क्लास अटेंड कर सकते हो, नहीं तो इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही चलने वाला है। तो आपके लिए सुविधा है, इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव, अदर्स हैव टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द क्लास। सो अगले कैंडिडेट तैयार हो जाइए। अविराज चौहान जी, आपको फिर से मैं टर्म्स एंड कंडीशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। अविराज, आर यू देयर? यस सर। वेरी गुड। अभी आज बहुत आवाज नीचे आ रही है, ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा आपका वॉल्यूम बढ़ा के रखिए। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 5 ऑब्जेक्टिव होंगे। अगर आप ऑप्शन मांगेंगे तो आपके सवाल का जवाब का जो ग्रेडिंग है वो 3 से घट के 1 पे आ जाएगा। मतलब 5 के ऑप्शन मांगे तो 5 मार्क्स मिलेंगे सही जवाब के लिए। हर एक सवाल का 3 मार्क्स है विदाउट ऑप्शन। ये समझ में आया आपको? ओके। अरे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो। हाँ जरा जोर से, ठीक है। ओके सर। और सब्जेक्टिव में 5 मार्क्स मिलेंगे एक सवाल के। और आज हमारे कैंडिडेट है इस सीक्वेंस में, अविरत जी के बाद कौन है मैं बताऊंगा, बट आज और एग्जाम भी सबके लिए। एग्जाम सिर्फ उन्हीं के लिए हो रहा है जो सर्टिफिकेट कैंडिडेट है। इसमें कौन कौन आता है ये उन लोग को मालूम है जिन्होंने फीस पे किया है, बिकॉज दोज आर द पीपल हु आर एलिजिबल फॉर सर्टिफिकेट। और ये रूल्स के हिसाब से चल रहा हूँ, इसमें कोई मनी माइंडेडनेस नहीं है। सिस्टम में कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो जितने 2-4 लोगों ने पेमेंट किया है और जो सर्टिफिकेट कोर्स को विलिंगली आए हैं उनका ही एग्जाम होगा। बाकी सब लोग क्लास हमेशा अटेंड कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। सो अविरत जी, आपका पहला सवाल, यस सर। हाउ मेनी अर्थ कैन बी अकोमोडेटेड इन जुपिटर? आपको ऑप्शंस चाहिए तो आप मांग सकते हैं। यस सर। ऑप्शन सर। क्या ऑप्शन चाहिए? यस सर। ओके, तो आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा, सर मुझे ऑप्शंस चाहिए, नहीं तो मुझे समझेगा नहीं। सो आई एम गिविंग यू ऑप्शन। हाउ मेनी अर्थ कैन बी अकोमोडेटेड इन जुपिटर? क्या ऑप्शंस है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 11,000, ऑप्शन डी 1300। 1300। हाँ 1300 सर। ओके चलो, तो आपका जवाब सही जवाब। ओके, 1 मार्क मिला आपको। गुड। थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द लार्जेस्ट जोवियन प्लेनेट? ऑप्शंस चाहिए सर। ओके, ऑप्शंस आर ए यूरेनस, बी जुपिटर, सी सैटर्न, डी नेपच्यून।
नेपच्यून सर। इनकरेक्ट। ओके, क्यों? जोवियन मतलब होता है जो गैसियस है वो, और ये सारे जो गैस का एनवलप लेके चलते हैं उनमें सबसे बड़ा भाई जो है वो जुपिटर है। ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही यस बेसिक सवाल, यस सर। आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, यस सॉरी। चलो लेट्स गो टू द थर्ड यस क्वेश्चन। वेयर सेरेस which is dwarf planet located in solar system? ऑप्शन चाहिए सर। Very good. Options are A. Kuiper belt, B. Oort's cloud, C. Asteroid belt, D. At 8.7 light years. डी सर। Incorrect. Okay. सही जवाब है सेरेस इज लोकेटेड इन एस्टेरॉइड बेल्ट। ओके, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो भाई साहब लोग घूमते रहते हैं उसमें एक सेरेस, तो यहाँ भी आपको मिला 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाउ फार एंड्रोमेडा गैलेक्सी लोकेटेड फ्रॉम मिल्की वे? ऑप्शन चाहिए सर। ओके, ऑप्शन ए इज 22,000 लाइट ईयर्स, बी 25 लाइट ईयर्स, सी 220 मिलियन लाइट ईयर्स, डी 25 लाख लाइट ईयर। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए लिखा है 22,000 लाइट ईयर्स। ओके, ये जो है वो क्या है, गलत जवाब है, क्योंकि 25 लाख लाइट ईयर पे। ओके, तो ये आपको दे दिया 0। अविरत, गोइंग वेरी बैडली। ओके, यस सर। चलो फिफ्थ यस सर। सवाल है आपके लिए। मैं जानबूझ के आप सब लोग जो बड़े हैं, स्पेशली पिछले सर और आप, आपके लिए मैं जरा यूनिट्स का भी गड़बड़ कर रहा हूँ, यही सोच के कि आप अगर एस्ट्रोनॉमी के ऊपर सोचते होंगे आपके दिन भर के शेड्यूल में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिट समझना भी एस्ट्रोनॉमी में एक जरूरी मकाम है। सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एग्जाम। Now, fifth यस सर। question, objective question for you is: Halley's comet complete one revolution around sun in period बताना है आपको। ऑप्शन चाहिए सर। हाँ, ऑप्शन है, ऑप्शन ए 67 ईयर्स, ऑप्शन बी 40 ईयर्स, ऑप्शन सी 76 ईयर्स, ऑप्शन डी 52 ईयर्स। 76 ईयर्स। ग्रेट, गुड जवाब। ओके, पर आपने ऑप्शन मांगे तो आपको आंसर मिले, मार्क्स मिलेगा 1। अभी चलते हैं हम लोग यस। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, जिसके मार्क्स है 5। एक्सप्लेन परसियस ओके सर। कॉन्स्टिलेशन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके सर। इधर उधर देख के मत बताना। नहीं नहीं सर, नो सर। शुरू हो जाओ। अविरत जी, ये सही नहीं है, चलो शुरू हो जाओ। यस सर, थिंकिंग। फिर सडनली अच्छा बताओगे तो हम लोग डाउट करने लगेंगे आपके ऊपर। नो सर। आई एम थिंकिंग दैट which constellations surrounded by Perseus. चलो थोड़ी हिंट दे देता हूं मैं आप लोगों को, ताकि सबका जिंदगी आसान हो। जब आपको कॉन्स्टिलेशन के बारे में बताया पूछा जाए, तो आप पहले तो ये बताओ कि उसका जो इंग्लिश है उसका मराठी क्या है। फिर वो जो कॉन्स्टिलेशन है, जैसे अविरत सोच रहे हैं कि वो कहाँ लोकेटेड है, तो एकदम 1 to 1 बताने की जरूरत नहीं है। फिर उससे रिलेटेड स्टोरीज कौन सी है, फिर उस स्टोरीज से रिलेटेड वेस्टर्न लोगों की स्टोरीज क्या है, अरेबियन लोगों की स्टोरीज क्या है, हिंदुस्तानी लोगों की स्टोरीज क्या है, ये सब चीज आपको बताना चाहिए। नाउ आई विल वेट फॉर अनदर 15 seconds, then your time will be over. ओके सर। Right now I am completely blank, sir.
कंप्लीटली ब्लैंक पढ़ोगे नहीं तो यही होगा, 15 सेकंड खत्म हो गए, माइक ऑफ कर दीजिए अपना, आपको भी इसमें 0 मार्क्स मिलते हैं। एक चीज आप पक्का दिमाग में डाल दीजिए सब स्टूडेंट लोग, ओके, माई रिलेशन विथ यू इज एक्सट्रीमली गुड when it is that you are sincere and performing to the mark of delivery done by us। हम सब टीचर जो ऐसे ऑनलाइन में है और मैं उस टीम को लीड कर रहा हूं, तो उद्देश्य ये है कि घर बैठे बैठे सस्ता सुंदर टिकाऊ नॉलेज या एजुकेशन सबको मिले। इसमें पैसे कमाना कोई इच्छा या आकांक्षा नहीं है, उद्देश्य है कि भाई जो टीचर है उनको पैसे मिले, जो नहीं मिल रहे तो मेरी ही जेब से जा रहे हैं। बट कुछ मामले में जैसे ये एस्ट्रोनॉमी कोर्स है तो डॉक्टर पिकले जी है, अविरत जी है, फिर भाव्या है, आरुष है, श्लोक है, साई पद्मनाभन है, पूर्वाभिषेक है, प्रद्युम्न मोटे है, ये सब लोगों ने फीस दी, तो नाउ द कोर्स इज गोइंग क्वाइट गुड। बट अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल, मैं दुखी हो गया परफॉर्मेंस ऑफ 2 स्टूडेंट। तो नाउ द थर्ड स्टूडेंट इज श्लोक कुलकर्णी। श्लोक माइक ऑन करो। यस सर। गुड। तुमको एग्जाम सिस्टम समझा? Yes, sir. 5 questions optional, sir. If you ask for options, 1 mark each, sir. Otherwise, it will be 3 marks if you respond directly, sir. And in the end, there will be a subjective question, sir, of 5 marks, which वेरी have to गुड। tell 5 sentences. यस, मेरा दिल बाग बाग हो गया, खुश हो गया, सही जवाब दिया, तो इसका एक्स्ट्रा मार्क दूंगा मैं तुमको सर्टिफिकेट में। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। सवाल Sir, समझा आपने? Jupiter, sir. या Yes, sir. करेक्ट, Sir, Jupiter, sir. very good, so you get here 3 marks, okay। The group of celestial bodies confined in Mars and Jupiter। आपको मैं सवाल Asteroid. समझा दूं? हाँ, ओके, बोलिए। Asteroid belt, sir. Very good, so you are again right and here you get 3 marks। Now average distance of moon from earth। Sir, options, sir. Options are 3.84 lakhs kilometer, option B is 2.94 lakhs kilometer, option C is 1.1 light minute, option D is 1 crore kilometer। आपको चाहिए तो मैं रिपीट कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सर लास्ट ऑप्शन कौन सा था सर? लास्ट ऑप्शन था 1 करोड़ किलोमीटर। सर आप ऑप्शंस रिपीट कर सकते हैं? या प्लीज। द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ एवरेज, ऑप्शन ए इज 3.84 lakhs kilometer, option B is 2.94 lakhs kilometer, option C is 1.1 light minute, option D is 1 crore kilometer। सर ऑप्शन बी सर। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, ओके। बी सर, बी सर, ऑप्शन बी। बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ओके। और कुछ? सॉरी सॉरी, ओके। तो आप 6th में हो श्लोक? यस सर, 7th अभी सर। हाँ, 7th, ओके। सो आपके लेवल का ये सवाल था क्योंकि आपको ये सब चीज मालूम होना चाहिए। आपने 2.94 लाख किलोमीटर बोला, जो एक्चुअली 3.84 लाख किलोमीटर है एवरेज डिस्टेंस। वैसे नॉर्मली हम उसको 3.5 लाख किलोमीटर से 4.1 लाख किलोमीटर के बीच में पकड़ते हैं, ओके। यस सर। Shall we go for next question? यस सर। How many constellations are defined as per IAU, International Astronomical Union? ऑप्शंस चाहिए? गूगल नहीं कर सकते हैं तुम बीच में, साइड वाले No लैपटॉप पे? sir, I'm not googling.
84 constellations, sir. इनकरेक्ट। ओके, अभी आपको ऑप्शन चाहिए? Yes, sir. हाँ, तो इनकरेक्ट का -1 तो होगा। अभी ऑप्शंस देता हूँ, उसको तुम +1 से निपटा सकते हो। तो ऑप्शंस आर, Yes, sir. ऑप्शन ए 88, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 94, ऑप्शन डी 87। Option A, क्या था sir? Option A. ऑप्शन ए was 88, B was 48, C was 94 and D was 87. This is defined by International Astronomical Union, right, sir? Not from Ptolemy's book. No, not by Tomelli's book. Okay, So Ptolemy, by sorry. Option A, sir? ऑप्शन ए तुम गूगल कर रहे हो क्या बैठ के वहां पे? नहीं सर, नो सर। हाँ, मुझे इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑप्शन ए 88 इज करेक्ट। ओके, तो तुम्हारा यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि तुम्हारा एक -1 था इनकरेक्ट जवाब देने के लिए। अभी हम लोग चल रहे हैं 5वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, follow discipline, don't do any mischievous thing in exam. Okay, I am not telling you to put on your video just for the sake of avoiding any inconvenience, क्योंकि आप लोग अभी शाम का वक्त है, कैसे बैठे हो मुझे नहीं पता। तो अभी 5वां क्वेश्चन है, गैलीलियो used which type of telescope? सर ऑप्शन सर। रिफ्रैक्टर, रिफ्लेक्टर, रेडियो टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टर सर। फिर से बोलो क्या? फिर से जवाब दो, मैं जवाब समझा नहीं। सर ऑप्शन। रिफ्रैक्टर, रिफ्लेक्टर, रेडियो, हबल। अभी जवाब दिया ना तुमने, अभी फिर से रिपीट तो करो उसको। रिफ्रैक्टर सर। रिफ्लेक्टर, रिफ्रैक्टर, फिर से एक बार दोहराओ। रिफ्रैक्टर। हाँ, रिफ्रैक्टर, ठीक है, सही है। तो आपको यहाँ मिला 1 मार्क। रिफ्रैक्टर वो होता है जिसमें लेंस यूज होता है, रिफ्लेक्टर जो होता है उसमें मिरर यूज होता है। ये सर आपके मेरे लिए पास रिफ्लेक्टर था और वो डिफरेंट शेप था वो गैलीलियो टेलीस्कोप से, इसीलिए समझा। सबका शेप एक जैसा होता है। श्लोक, मैं आऊंगा तेरे घर पे कभी देखने, तू टेंशन मत। हाँ, अभी और तुम्हारा सब्जेक्टिव सवाल है। ओके, व्हाई प्लूटो इज कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट? यस सर। Sir, Pluto, sir, is beyond both the rocky planets and the Jovian planets, which are gassy planets. Sir, Pluto is much smaller than the other planets, sir. That is why it is known as a dwarf planet. Sir, Pluto is part of the is part of many is part of many trans-Neptunian planets, meaning the planets that lie beyond Neptune. It is also part of it is also part of it is also part of a group of 5 bigger dwarf planets, sir. It also possesses 5 moons, of which Chiron is the biggest and most prominent. हो गया तो बोलने का, खत्म हो गया मेरा जवाब। आपका जवाब देके होने के बाद उसको बोलना है कि आई हैव क्लोज्ड। आई हैव क्लोज्ड सर। ओके, ग्रेट। अभी अगर मैं पूछूंगा कि ऐसे तो नहीं पूछना श्लोक तुम्हारा नाम क्या है, बट मैं गलती से पूछ भी दो तो तुम क्या बोलोगे? श्लोक, फिर पिताजी का नाम, फिर कुलकर्णी। अभी तुम ये तो नहीं बताओगे तुम्हारा पूरा हिस्ट्री, रामायण बिल्डिंग में कितने लोग रहते, पर तुमने श्लोक का नाम बताया ही नहीं। ऐसे नहीं चलता है। तो आप जो 6th 7th वाले बच्चे हो, इवन छोटे बच्चे भी, ये समझो कि सवाल सुनना है, सवाल समझना है और सवाल का वही जवाब देना है जो एक्चुअल जवाब है। आपने कोशिश की, इसके लिए अप्रिसिएशन। आपने एटलीस्ट नहीं बोला तो 5 सेंटेंस बोला, इसलिए भी बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करता हूं मैं आपको। बट जवाब जो है वो सटीक नहीं था, मतलब इट वाज नॉट एग्जैक्टली जो चाहिए वो नहीं।
जैसे आपने एक दो चीज अच्छे से पॉइंट आउट की कि भाई वो जोवियन के आगे है, सबसे छोटा है, वो उसका एक चेरॉन नाम का सैटेलाइट है। बट बहुत जरूरी चीज है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उसको ड्वार्फ प्लेनेट बोला, नहीं तो उसके पहले 2006 के पहले लोग 9 प्लैनेट है सोलर सिस्टम में इस तरीके से पढ़ते थे जैसे मैंने पढ़ा। बट आपने स्कूल में पढ़ा कि 8 प्लैनेट है। तो ये क्यों आया? इसका कारण है कि भाई ड्वार्फ प्लैनेट के रूल्स रेगुलेशंस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बताए, और उसके हिसाब से ये प्लूटो जो है वो उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है। जैसे उसका एक अपना एक इंटीग्रल सिस्टम है, वो सिस्टम के हिसाब से चलता है, वो बहुत ही ज्यादा हाईली एक इंसेंट्रिक ऑर्बिट फॉलो करता है। और इस तरीके से ये जो 3-4 रूल्स है उनको मद्देनजर रखते हुए उसको ड्वार्फ प्लैनेट बताया गया। तो एनीवेज आपने अच्छे से जवाब दिया, इसके लिए आपको यहाँ मैं 3 मार्क्स दे रहा हूँ फॉर योर अटेम्प्ट। ओके, बट द टेक्निकल कंटेंट्स वर मिसिंग। सो एनीवे यू आर नाउ, आपका एग्जाम खत्म हो गया, अभी आप क्लास अटेंड करिए, और बीच में आप तो वैसे इनडिसिप्लिन हो नहीं तो बात तो नहीं करोगे, जस्ट लिसन टू द क्लास। वी गो टू द नेक्स्ट कैंडिडेट, दैट इज साई पद्मनाभन, है क्या? यस सर, गुड इवनिंग सर। अच्छा, ओके साई, कैसे हो? अच्छा, शुरू करें क्लास। यस सर। आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आया साई? यस सर, ऑप्शन 5 सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर। वेरी गुड। आप कौन से क्लास में है? सर आप यू आर इन स्टैंडर्ड 7 सर, आई एम गोइंग टू 7 सर। वेरी गुड। तो अभी आपके पीछे जो सब मस्ती कर रहे, खेल रहे, टीवी चला रहे, उनको बोलो 5 मिनट के लिए शांति रखेंगे। ओके, हाँ चलो, विल कम टू योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। हाउ मच टाइम लाइट टेक्स टू रीच अर्थ फ्रॉम सन? ऑप्शन चाहिए तो पूछो, डिस्कशन मत करो घर वालों के साथ। सूरज से पृथ्वी तक लाइट पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन चाहिए तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सर। वेरी गुड। ओके, तो ये आपने विदाउट ऑप्शन मांगा तो इसके आपको 3 मार्क्स मिल गए। पर बीच में इंटरनेट का सहारा मत लो, फॉलो डिसिप्लिन। चलो लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। विच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार? ऑप्शंस चाहिए तो पूछो। सर ऑप्शन ऑप्शंस, ऑप्शन ए इज मर्क्यूरी, ऑप्शन बी इज सीरियस, ऑप्शन सी इज वीनस, ऑप्शन डी इज कृत्तिका। सर वीनस। वीनस, तो ये भी आपने सही जवाब दिया, तो आपको यहाँ मिलता है 1 मार्क। हम चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी नक्षत्र आर देयर इन हिंदू अल्मेनाक? हिंदू पंचांग में कितने नक्षत्र है? सर 30। तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी -1 हो गया, अभी ऑप्शन चाहिए। यस सर। हाँ, ऑप्शन ए इज 24, ऑप्शन बी इज 12, ऑप्शन सी इज 36, ऑप्शन डी इज 27। 36 सर। गलत जवाब, तो ये भी आपका 0, तो यहाँ आपका -1 बरकरार रहा। ऑप्शन 27 इज करेक्ट। ये मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, आधा लेक्चर इस पे लिख चुका हूँ मैं। सही, आपको मेरे वीडियोस देखते रहने चाहिए अगर आपको वो अच्छे लगते हैं तो। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले हम लोग। ओके सर। क्वेश्चन नंबर, ओके ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टार जनरेट एनर्जी बाय विच रिएक्शन? ऑप्शन से तो बोलो। सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन सर। Star generates energy by which reaction? ऑप्शन चाहिए क्या? घर में कोई बच्चा है क्या? उसको शांत रहने को बोलो ना।
Okay, sir. ऑप्शन चाहिए क्या तुमको? Sir, please repeat the question, sir. स्टार जनरेट एनर्जी बाय विच रिएक्शन? अभी रिपीट नहीं करूंगा. Sir, option, sir. Options are fission reaction, chemical reaction, fusion reaction, biochemical reaction. Fusion reactions, sir. ओके, ठीक है, सही जवाब. तो यहाँ पे आपको मिला 1 मार्क. बहुत टाइम ले रहे हो तुम यार. ओके, चलो 5वां क्वेश्चन. थोड़ा टफ है बट हाल ही में पढ़ाया है तो आपको मालूम होना चाहिए अगर आप क्लास सिंसियरली अटेंड करते हो. अल्गोल स्टार इज इन विच कॉन्स्टिलेशन? अल्गोल स्टार इज इन विच कॉन्स्टिलेशन? Sir, option, sir. ऑप्शन है पाइसिस मतलब मीन राशि, बी है परसियस, सी है ओरायन, डी है एंड्रोमेडा. Sir, Perseus. वाह, तुम सचमुच गूगल खोल के बैठे हो लगता है. ठीक है, तो ये सही जवाब है आपका. अभी आपका 5वां सॉरी लास्ट वाला क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव टाइप है, आपको एक्सप्लेन करना है मीटियोर शॉवर फेनोमेना. एक्सप्लेन फेनोमेना ऑफ मीटियोर शॉवर. आपका समय शुरू होता है अब. ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा मैं. आपको अगले 30 सेकेंड्स के अंदर जवाब शुरू करना है. पिकड़े सर, शायद आपका माइक ऑन है. नहीं नहीं, ऑफ है, सॉरी. पंद्रह सेकंड बचे. A meteor is celestial in which a number of meteors are observed to radiate or originate from one point. सही तुम्हारा. Meteors are caused सुनो, तुम्हारा आवाज कट रहा है तो नेटवर्क एरिया में जाके आप जवाब रिपीट करिए. ओके, आपका आवाज कट रहा है बहुत ज्यादा, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है. हाँ बोलिए, टेस्टिंग करते हैं. These meteors are caused by streams of cosmic debris called meteoroids. Sir, हो गया sir? अरे नहीं, तुमको रिपीट करना पड़ेगा, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया. पहले तो एक बताओ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सबको ठीक से सुनाई दे रहा है? यस नो लिखिए चैट बॉक्स में, ताकि उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम है कि मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है वो थोड़ा समझ में आ जाए. अपना नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? आपको आवाज आ रही? सर, आपका वॉइस तो अच्छे से सुनाई दे रहा है सर. वेरी गुड. तो आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो थोड़ा अभी आपका आवाज ठीक से आ रहा है. जवाब रिपीट करिए प्लीज. प्लीज रिपीट योर आंसर वॉट एवर यू हैव गिवन. अरे बाप रे, उसका माइक ऑफ हो गया तुम्हारा. हाँ सॉरी सर. प्लीज रिपीट करिए जवाब. A meteor shower is a celestial event in which a number of meteors are observed to radiate or originate from one point in the night sky. These meteors are caused by streams of cosmic debris called meteoroids entering Earth's atmosphere at highly speeds on parallel
highly speeds. भाई मेरे कहाँ से पढ़ रहे हो? अभी तुमने कोशिश की तो तुमको भी तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो बाकी बड़े लोगों ने कुछ किया ही नहीं, तो आई हैव टू गिव यू मार्क्स। तो मैं तुमको यहाँ 2 मार्क्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने इसमें नाम भी नहीं बताए मीटियोर शॉवर के, जो बताने चाहिए आपको। तो यहाँ पे अपने 4 कैंडिडेट खत्म हो गए। अभी आरुष पाटिल जी को हम सवाल पूछते हैं। तो आरुष इज देयर? Yes, sir. वेरी गुड। आप कौन से क्लास में हैं आरुष? Sir, just moved to 7th standard. अरे वाह, सब एक ही स्टैंडर्ड के बच्चे। गुड। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम यू। ऑब्जेक्टिव, आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आया? Yes, sir. ओके, नाउ विल स्टार्ट विथ यू। आपका पहला सवाल है, व्हाट इज द एज ऑफ यूनिवर्स? Sir, आपको options. ऑप्शन, या तो आपको मैं जो ऑप्शंस दे रहा हूँ वो थोड़े कंफ्यूजिंग रहेंगे यूनिट्स के मामले में। आप शांति से सुनिए, आपको नहीं समझ में आया तो फिर से मुझे पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। Okay, sir. So what is the age of universe? Option A is 10.8 billion years. Option B is 1380 crore years. Option C is 4.2 billion years. Option D is 1380 billion years. Sir, option A. Option A 10.8 billion years is a wrong answer. क्यों? क्योंकि 13.8 बिलियन ईयर्स इज अ राइट आंसर, जिसका मतलब होता है ऑप्शन बी 1380 करोड़ ईयर्स। 1380 करोड़ का मतलब होता है 13.80 बिलियन। तो यहाँ आपने यूनिट में गड़बड़ किया लगता है, तो इट्स ओके। थोड़े छोटे हैं बट इतना यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, क्योंकि बार बार ये बताता रहता हूँ। आपका दूसरा सवाल इंटरेस्टिंग है। आपके लिए दूसरा सवाल है, द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द नाइट स्काई इज? क्या है रात का सबसे ब्राइट तारा? Sir, pole star. ये तो पूरे पैसे बर्बाद कर दिए मम्मी डैडी के तुमने। ओके, तो अभी इधर आपको -1 मार्क मिला। अभी ऑप्शन चाहिए। Yes, sir. ऑप्शन ए इज अल्फा सेंटोरी, ऑप्शन बी इज चित्रा, ऑप्शन सी इज सीरियस, ऑप्शन डी इज वेगा यानी अभिजीत। तो आपको 4 में से एक जवाब देना है। Sir, Vega. इनकरेक्ट जवाब। ओके, क्योंकि सही यहाँ आपको 0 मिला, तो ये -1 आपका बरकरार रहा। सही जवाब है सीरियस। सीरियस रात का सबसे ब्राइट तारा है, और ये बात हमने काफी बार की है, जबकि अब तक हमने कैनिस मेजर वो कॉन्स्टिलेशन कवर नहीं किया जिसमें सीरियस होता है। बट आप लोग बिल्कुल पढ़ाई के बारे में सीरियस नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होगा। अभी आपका तीसरा सवाल, आपका खाता खुलना बाकी है और ऑलरेडी आप नेगेटिव में जा चुके हैं। डायमीटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी कितना है? डायमीटर मिल्की वे गैलेक्सी का? Sir, options. ऑप्शन 1 इज 1 लाख लाइट ईयर, ऑप्शन बी इज 22 lakhs लाइट ईयर, ऑप्शन सी इज 8.7 लाइट ईयर्स, ऑप्शन डी इज 13.8 लाइट ईयर्स। Sir, option B. ऑप्शन बी है 22 लाख लाइट ईयर, जो गलत जवाब है। क्यों? क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर है 1 लाख लाइट ईयर। ओके, और आप जिस कॉन्फिडेंस से और क्लियरली आवाज आपकी आ रही है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आपको सब क्लास अच्छे से सुनाई पड़ती होंगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में नेटवर्क इज अ बिग प्रॉब्लम, बट आपकी आवाज अच्छे से आ रही है, तो मुझे अच्छा लगा। सो एनीवेज, बहुत टाइम है अपने पास पढ़ने के लिए। तो ऑप्शन क्वेश्चन 4 पे चलूं मैं अरुष? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन 4 इज, हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट मार्स हैज? मंगल ग्रह को कितने नैसर्गिक उपग्रह है? ऑप्शन दो? Yes, sir. ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। Sir, option. Sir, 2. वेरी गुड। चलो चलो, कुछ तो हो गया। एक जवाब मिला, 1 मार्क मिला। नाम बता दो, ऐसे ही मस्ती कर रहा हूँ, बट नाम आते हैं तो बता दो।
नहीं सर। फोबोस एंड ड्यूमियोस। ओके, तो ये दो मंगल ग्रह के नैसर्गिक उपग्रह है जो जैसे पोटैटो शेप में है। नॉर्मली सेलेस्टियल बॉडीज स्पेरिकल होती है, बट ये पोटैटो शेप में चल रहे हैं। तो कभी कभी हम उनका भजी बना लेंगे जब उधर जाएंगे। अभी हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द कॉमेट्स इन सोलार सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम। कॉमेट्स जो सूरज के चक्कर मारने आते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? सर ऑप्शंस। ऑप्शन ए एस्टेरॉयड बेल्ट, ऑप्शन बी क्यूपियर बेल्ट, ऑप्शन सी वुड्स क्लाउड, ऑप्शन डी हेवन। सर वुड्स क्लाउड। ग्रेट, बहुत अच्छा जवाब, वेरी गुड। वुड्स क्लाउड इज द राइट आंसर। अभी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म इक्लिप्स। तो आप इक्लिप्स के बारे में सब्जेक्टिव आंसर दे सकते हैं। Sir, there are two type of eclipses: solar eclipse and lunar eclipse. So when the Earth comes in between the moon and the moon and the sun, it's a lunar eclipse, and when the moon comes in between the sun and Earth, it's a solar eclipse. Because the shadow of the moon is seen on the Earth, and only one side of the Earth can see the eclipse. ठीक है, तो आपको 5 मार्क्स के लिए एलिजिबल करने के लिए मैं एक सवाल पूछूंगा। ओनली लूनार एंड सोलार इक्लिप्स एग्जिस्ट इन सोलर सिस्टम और समथिंग एल्स इज पॉसिबल? Sir, something else is possible. गुड, तो यहाँ मैं तुमको 5 मार्क दे रहा हूँ, तो तुमने तो एकदम लास्ट में छक्का मारा। गुड गुड। Thank you, sir. और आप अच्छे से बोल भी रहे हो, तो इट इज वेरी गुड। कभी हम मिलेंगे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए, तो हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे। Okay, आज sir. आपका शुरुआत का परफॉर्मेंस खराब होने के बावजूद भी आप बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं हुए, दैट इज वंडरफुल थिंग आरुष, कीप इट अप। सो Okay, sir. Thank you, sir. आज हमारी, या गुड, कंटिन्यू, शैल आई कंटिन्यू? यू कैन स्विच ऑफ योर माइंड। ओके, सो हमने 9:45 पे खत्म करने की बात की थी, बट हम ऑलरेडी टाइम क्रॉस कर चुके हैं। तो टाइम क्रॉस करने के कारण आज हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आगे बचे हुए कैंडिडेट्स जो है उनकी एग्जाम होगी। वो कैंडिडेट्स है भाव्या दाम से, देन पूर्वा भिसे एंड देन प्रद्युम्न मोटे। ये 3 कैंडिडेट रह गए जो सर्टिफिकेट कोर्स के स्टूडेंट है। बाकी सब लोग जो है वो ऑडियंस कैंडिडेट है। तो आपके एग्जाम नहीं होंगे क्योंकि उसके पीछे थोड़ा मुझे एफर्ट्स करना पड़ता है, एनर्जी डालना पड़ता है, डाटाबेस जनरेट करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। तो भाव्या एंड पूर्वा एंड प्रद्युम्न, आपको तीनों को सिस्टम पता हो गया। अभी ये हफ्ता पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ेंगे तो वही परफॉर्मेंस होगा जो 2 एल्डरली लोगों ने दिया। तो आप 3 लोग अच्छे से परफॉर्म करना, अगले वीक हम करेंगे आपकी एग्जाम इसी तरीके से। टिल देन इफ एनीबडी हैज एनी डाउट, अभी आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, या जिनकी एग्जाम हो गई वो लोग माइक ऑन करके भी बात कर सकते हैं। सो आई विल वेट फॉर few seconds to get your queries. कुछ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज पूछिए, नहीं तो हम लोग आज का क्लास खत्म कर देते हैं। जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा बुरा मत मानिए, बट इट इज डायरेक्टली रिफ्लेक्टिंग कि आप पढ़ नहीं रहे। एस्ट्रोनॉमी आपने हॉबी की तरह, इंटरेस्ट की तरह ज्वाइन किया है, तो आपको उसके बारे में पढ़ते रहना चाहिए। सो आज जिनका मैं एग्जाम नहीं करवा पाया वो बच्चे डिमोरलाइज मत हो जाइए। आपका एग्जाम होगा अगले हफ्ते और उसके लिए ज्यादा प्रेशर लेने की भी जरूरत नहीं। ये आपका जनरल नॉलेज एस्ट्रोनॉमी का चेक करने का तरीका है मेरी तरफ से। ये पहला एग्जाम हुआ जिसका टोटल वेटेज था, कितना वेटेज था ये? 5 त्रिक 15 प्लस 5, तो 20 मार्क्स। ऐसे 20 मार्क्स के 2-3 एग्जाम तो हम लेंगे टू पुट यू इनटू दैट स्केल ऑफ 100 फॉर योर सर्टिफिकेट व्हेन वी विल बी फिनिशिंग फर्स्ट एस्ट्रोनॉमी कोर्स ऑफ 50 सेशन। उसके बाद भी हम कंटिन्यू करेंगे अगर आप चाहते हो तो, विथ यूर इंटरेस्ट एंड नॉट विथ यूर फीस। बट फीस देंगे तो अच्छा लगता है क्योंकि उससे थोड़ा क्लास लेने में बाकी लोगों को मदद मिलती। सो अभी आपको किसी को कुछ डाउट नहीं है क्या? तो वी विल लीव। नहीं कोई पूछ रहा है, सो शैल वी लीव? यस नो लिख दीजिए चैट बॉक्स में।
आज का क्लास खत्म करे क्या? नो डाउट सर. ओके आयुष. ओके ओके सर. ठीक है डॉक्टर पिकड़े, अविरत, चलो अरुष, चलो पूर्वा, बाय बाय. चलो यू कैन लीव द क्लास. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. चलो आर्यन बाय बाय. पूर्वेश बाय. Okay, bye bye. Good night. Kindly leave the class. Thank you so much. Please, bye bye.